let's start with the session now. I'm sharing my screen with all of you. Let's revise whatever we were doing in our previous session, okay? And then I will continue with our topic, okay? Chaliye. As I told you, when it comes to salary chapter, it is divided into 5 categories. Number one is it is your basic salary. Number two, it is your DA. Third is your allowances. Fourth is your perquisites, and fifth is your retirement benefits. Okay. When it comes to basic salary is my base salary on which we calculate, or I would say do all the calculations. DA stands for DNS allowance, and it is of two types. One is your in terms, and second is your not in terms, right? So in terms, which is being part of retirement benefits, not in terms, which is not being part of retirement benefits. So this is your basic salary, and then DA. When it comes to allowances, allowances are basically like we have covered HRA allowance and spatial allowance, children education allowance. There are so many allowances which is basically given by the can be given by the entity, and this allowance is like it either can be partially exempt or fully exempt depending upon the limits given. And we have already covered all these limits, allowances, etc. Right? When it comes to perquisites are basically the benefit in kind, like for example, the rent-free accommodation, the leave travel concession. These are the perquisites. Okay. So hotel facility, etc., car facility. These are your perquisites. So we have covered perquisites as well. When it comes to retirement benefits, we have covered gratuity. And in gratuity, I told you that if gratuity is received during employment, then it is fully taxable. However, if it is received at the time of retirement or death, then it is exempt under Section 1010. For government employees, it does not matter whatever the gratuity amount they are receiving, it is fully exempt. It is fully exempt. However, for non-government employees, I need to check whether the Payment of Gratuity Act is applicable or whether the Payment of Gratuity Act is not applicable. If the Payment of Gratuity Act is applicable, in that case, the exempt amount would be 15 by 26 multiplied by salary per month multiplied by number of years of condition of service. I need to compare the same with the actual amount received with maximum 20 lakh rupees. Okay. When it comes to the payment, when the Payment of Gratuity Act is not applicable, then the exempt amount will be half multiplied by average salary per month multiplied by number of years of condition of service. I need to compare the same with actual amount received, and then the maximum gratuity amount would be 20 lakh rupees. The salary definition which we had covered is basically the latest basic salary per month and latest DA, both we need to consider in case when the Gratuity Act is applicable. However, when the Gratuity Act is not applicable, then the salary definition would be average basic salary per month plus average DA in terms वाला जो होता है हमारा plus average turnover commission. This is going to be the salary definition when the Gratuity Act is not applicable. Number of years of completion, जब Gratuity Act is applicable, then the rounding off is allowed, otherwise the rounding off is not allowed. So this is something which we had covered already. And today we are going to start with our new topic. Okay. And the first topic which we are going to cover today is, as you're aware, हम लोग क्या करेंगे आज? हम लोग करेंगे PF के बारे में. ठीक है? Today is 21st of February 2020. Let's talk about Provident Fund. आप लोगों का PF डिडक्ट होता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसमें सबका 1800 होता है. कितना होता है सबको? 1800. 1800, right? First, okay. Now listen to me very carefully. The PF जो आपका डिडक्ट हो रहा है, we call it as recognized provident fund. Okay, we call it as recognized provident fund. आप देखोगे आपका एक यूएन नंबर इशू हुआ होगा, राइट? यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आपकी सैलरी स्लिप पे होगा, पॉसिबल है. सैलरी स्लिप पे नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके पास अवेलेबल होना चाहिए. अगर नहीं है तो अवेलेबल कराइए खुद को, ठीक है? अगर नहीं पता है तो दिस इज बेसिकली माय पीएफ फंड. ये मेरा पीएफ का फंड है. ओके. नाउ ये जो पीएफ का फंड है ना, ये लेट मी टेल यू, ये जो पीएफ का फंड है इसमें क्या होता है, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है. ओके, दिस इज योर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन. एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन. ओके. नाउ आप देखते होंगे कि आपका भी 1800 जा रहा है, एम्प्लॉयर का भी 1800 जा रहा होगा. ऐसा होता है?
और एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन को फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है टू कैटेगरीज में. वन इज योर पेंशन फंड एंड अनदर इज योर ईडीएलआई होता है, बट इसको नॉर्मल ले लो, ठीक है, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन. ठीक है. सो आप देखोगे, अगर आप अपने बुक्स देखोगे तो 1800 में से 550 रुपीज पेंशन फंड में आपके आ रहे होंगे और 1250 आपके आ रहे होंगे एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन में. कभी किसी ने अपनी यूएन स्टेटमेंट निकाल के देखी है? यस मैम. हाँ. तो इस तरीके से आप करते हैं. ठीक है. नाउ अगर एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया, मतलब जब आप लोग कंट्रीब्यूट करते हो, इसकी डिडक्शन आपको मिल जाती है अंडर सेक्शन 80C. ठीक है, 80C में आपको वो मिल जाती है. सो दैट मीन्स आपकी जो डिडक्शन है वो 80C में आपको मिल जाएगी. एक सेक्शन होता है 80C जिसमें आपको 1,50,000 रुपीज तक का डिडक्शन मिल जाता है. तो उसमें ये पीएफ फंड हमारा अवेलेबल होता है. और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन आपका एग्जेम्प्ट होता है. तो मतलब एम्प्लॉयर आपका कितना भी कॉन्ट्रीब्यूट करे, दिस इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट. एंड डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट कि जो एम्प्लॉयर आपका कॉन्ट्रीब्यूट करता है वो आपका सीटीसी के थ्रू करता है? मतलब जो सीटीसी होता है उसी में से ये एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है. यस मैम. राइट. जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है आपका सीटीसी से जाता है. राइट. नाउ दैट मीन्स कैन आई से कि एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन का भी कुछ रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए. देयर शुड बी सम लिमिट इनटू द एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन. राइट. अदरवाइज व्हाट विल हैपन? लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं. किसी का बेसिक सैलरी है 10,000 रुपीज, एचआरए है 5,000 रुपीज एंड स्पेशल अलाउंस है लेट्स से 25,000 रुपीज. सैलरी हो गई कितनी? 40,000 रुपीज. राइट. दिस इज माई ग्रॉस सैलरी. Now, out of this gross salary, my employer contribution, let's say I keep it as 60,000 rupees. ये मेरा सीटीसी हो गया 1 लाख रुपए का. डू यू एग्री कि अगर मैं बोलूं एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट है तो ये 60,000 रुपए पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा? ऐसे तो जो हायर सैलरी वाले बंदे हैं वो तो गड़बड़ कर लेंगे. बिकॉज किसी की कितनी भी हाई सैलरी हो, they can manage their expenses within, let's say, 1 lakh or 2 lakh rupees. And say, suppose if somebody's salary is 5 lakh rupees per month, 7 lakh rupees per month, obviously they will find this loophole and will deposit all their money in this employer contribution. Do you agree? Yes ma'am. Right. So in that case, what will happen? So the government said, okay, Income Tax Act according, the maximum PF contribution which you can make is up to 12% of basic salary. Okay. And if it is more than that, in that case, the remaining amount would be taxable in the hands of employee because employee का benefit. ठीक है. तो गवर्नमेंट ये कहती है कि जो मैक्सिमम अमाउंट आपको रखना है वो आपको रखना है 12% ऑफ बेसिक सैलरी. और अगर उससे ज्यादा कर रहे हो तो आप उसको टैक्स पे लगा दो. ठीक है, आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा. Are you getting my point? Now, as you can see, the 12% of this amount would be कितना होगा? 1,200 rupees, right? 12% of basic salary would be 1,200 rupees. Yes. So the remaining amount is 60,000 minus 1,200. 58,800 would be taxable in the hands of employees. Taxable in hands of employee. So if you are comfortable, then आप लोग मुझे अपना सैलरी का स्ट्रक्चर बता सकते हो. ठीक है. And then let's see how we are going to calculate taxes on the same. Otherwise, मैं assume कर रही हूँ अपने answer. Listen to me very carefully. When I calculate income under the head salary, okay. So my basic salary is going to be taxable. HRA, I'm assuming we are not paying any rent, etc. Okay, special allowance. This is going to be taxable. My gross salary is 40,000 rupees per month, right? So what I will do, income under the head salary would be gross salary
which is 40,000. This is one more. This is as per the old tax regime and new tax regime. My gross salary would be 40,000 rupees per month, 40,000 multiplied by 12. Okay. Then what I will do, since the employer contribution is in excess of 12% of basic salary, it is in excess of 12% of basic salary. So the amount would be taxable as कितना होगा 58,500, right? 58,800. बट 58,800 मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ेगा अपने को. इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो, 6,000 कर देते हो, है ना, या 10,000 कर देते हो. एक काम करते हैं, let's keep it 10,000. CTC is my 50,000 rupees per month, so it would be 8,800. So plus employer contribution in excess of 12% of basic salary. 8,800 multiplied by 12 कितना होगा 1,05,600, right? So here, as you can see, it would be 4,80,000 plus 1,05,600. It is 5,85,600. 5,85,600. And then you need to reduce the standard deduction. Do you guys remember standard deduction कितनी है old tax regime में? 50,000. 50,000. और new tax regime में? 75,000. Yes. So are you getting my point? Why I have created these two columns for the old tax regime and the new tax regime? Because the standard deduction is different in both the regimes. As you can see, the income is taxable in under the old tax regime. However, in the new tax regime, it is not at all taxable. So 5,85,600 multiplied by 50,000, it would be 535,600 minus 25,000. It would be 510,600. Is that clear to every one of you? Yes, ma'am. This is your taxable income. Now you have to pay taxes on this income. When it comes to old tax regime, new tax regime, it is not at all taxable. समझ में आया या नहीं आया? Is that clear? Yes, ma'am. अच्छा. I want to ask one question from all of you. Listen to me very carefully. Do you agree with this statement that when Supreme Court issues, or I would say passes any judgment, it becomes law of land? मतलब वो मेरा लॉ बन जाता है. अगर सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट पास करता है तो वो मान्य होता है या नहीं होता? नहीं पता आप लोगों को? आई थिंक आप लोगों को नहीं पता. सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली. व्हेन सुप्रीम कोर्ट कोई भी जजमेंट पास करता है, कोई भी, ठीक है, वो एप्लीकेबल हो जाती है. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट मतलब अब वो बोलो कि एक्ट में नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं, वो एप्लीकेबल हो जाएगी. ठीक है, पता है आपको ये चीज या नहीं पता? Yes, ma'am. पता है. पता है, ठीक है. अब मैं बता रही हूँ कि एक्ट में लिखा है 12% ऑफ बेसिक सैलरी. ठीक है, फिर एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, वो ये बोलता है, लोग क्या कर रहे थे, आपने कभी देखा है बहुत सारी कंपनीज बेसिक सैलरी को कम रखती है, लाइक दे ऑलवेज कीप द बेसिक सैलरी on the minimum level because all the calculations are based on basic salary only.
इवन फॉर ग्रेचुटी हो गया, कुछ भी हो गया, बेसिक सैलरी कम रखा जाता है आपका। देखा है आपने, ऐसा ऑब्जर्व किया है? Yes, ma'am. सो अब बेसिक सैलरी वो सुप्रीम कोर्ट ने देखा, ऑब्जर्व करा, तो उन्होंने एक चीज बोली कि एक काम करो, जो पीएफ जमा होगा ना, वो आपको 12% करना है, किसका? बेसिक सैलरी का, प्लस डीए प्लस फिक्स्ड कंपोनेंट्स, एक्सक्लूडिंग एचआरए। So, as per Supreme Court का जजमेंट somewhere back in 2019, फरवरी 2019 ये जजमेंट आया था हमारा, 2019 या 20 होगा जितना मुझे याद है, ठीक है। उसमें उसके हिसाब से 12% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस फिक्स कंपोनेंट एक्सक्लूडिंग एचआरए. So do you agree whatever the components you are receiving in your salary, these are fixed components only? Basic salary, special allowance, etc. ये जो स्पेशल अलाउंस है, बेसिक सैलरी, ये तो फिक्स कंपोनेंट ही है हमारे। Yes, ma'am. अमाउंट भी सेम रहता है इसमें। आपको अगर स्पेशल अलाउंस पूरी मंथ में 25,000 का मिला, तो नेक्स्ट मंथ में भी 25,000 का ही मिलता है। ऐसे थोड़ी होता है कि बढ़ जाता है। बढ़ता कौन सा है? वेरिएबल कंपोनेंट, लाइक कोई कमीशन मिला या कुछ मिला, वो कम होता रहता है, ज्यादा होता रहता है, राइट? वो फिक्स नहीं है। बट व्हाट अबाउट अदर कंपोनेंट्स? दीज आर द फिक्स ओनली। डू यू एग्री? Yes, ma'am. सो देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से दे हैव अलाउड अस कि 35,000 का आप 12% कर लीजिए। सो 12% ऑफ 35,000 वुड बी 4,200, राइट? तो जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से 10,000 मल्टीप्लाई माइनस 4,200, हम लोग ये 5,800 भी कर सकते हैं, टैक्सेबल है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? प्लीज, तो इंस्टेड ऑफ 8,800 आई कैन मेक 5,800 एज वेल। उसको मैं ऐड कर सकती हूँ ताकि मेरा इनकम और कम हो जाए। बट डिपार्टमेंट के नोटिस आने के चांसेस ज्यादा है उस केस में, देन यू हैव टू प्रूव दैट दिस इज एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, वी हैव टेकन दिस इनटू कंसिडरेशन। समझा कि नहीं समझा? यस मैम। ओके, तो दिस इज योर पीएफ जो आपका रेगुलर जमा होता है। अब ये 1,800 आया कैसे? आप लोगों का 1,800 डिडक्ट होता है, राइट? सबसे पहले एवरी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 10 और मोर एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, जैसे सेट इंडिया बिजनेस 10 और मोर एम्प्लॉइज है, राइट? Yes, ma'am. तो उनके लिए पीएफ डिडक्ट करना मैंडेटरी, लाइक पीएफ का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, ओके? और पीएफ डिडक्ट किसका होना जरूरी है? जिसकी सैलरी अप टू 15,000 रुपीज है। अप टू बोला है मैंने, उसके बाद नहीं। तो अगर आपकी सैलरी लेट्स से 16,000 रुपीज है या 17,000 रुपीज है, देन दिस पीएफ डिडक्शन इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है? हाउएवर ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो आपका डिडक्ट करते हैं, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन की खुद की पॉलिसीज होती हैं एंड दे कैन डिडक्ट द सेम, ठीक है? तो हम उस पे बेसिकली क्वेश्चन नहीं करेंगे कि आपने क्यों डिडक्ट कर लिया एंड ऑल। तो हर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है। जैसे आई वर्क एज ए पेरोल कंसल्टेंट फॉर अ वेरी बिग एमएनसी, सो अब उसमें हमारी पॉलिसी है, चाहे किसी की कितनी भी सैलरी हो, वी हैव टू डिडक्ट द पीएफ। किसी को इशू हो रहा है तो हम उसको कंसिडर, समटाइम्स वी डोंट, मतलब वी डोंट कंसिडर हिज रिक्वेस्ट कि मुझे पीएफ नहीं डिडक्ट कराना, यू हैव, वी हैव टू डिडक्ट योर पीएफ बिकॉज ये हमारी पॉलिसी है पूरी, ठीक है? बट जो मैंडेटरी है वो किसका करना है? वो सैलरी अप टू 15,000 वाले का, ठीक है? अब सैलरी अप टू 15,000 का मुझे क्यों बोला गया 15,000 ही? बिकॉज एक और जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, उस जजमेंट के हिसाब से किसी बैंक की है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट जजमेंट, उसके हिसाब से भी पीएफ डिडक्ट करना आपका मैंडेटरी है, जिसमें हमें बेस अमाउंट लेना है 15,000 का, विच कम्स 1,800 रुपीज, ठीक है? ये उस जजमेंट की वजह से आया है 1,800, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वजह से, ठीक है? एक और चीज, सपोज करो
अगर किसी की सैलरी 10,000 रुपए है, तो डू यू थिंक उसका भी 1800 पीएफ डिडक्ट होता होगा? नो मैम। तो लेट्स से किसी की सैलरी, बेसिक सैलरी है 3,000 रुपीज, एचआरए है लेट्स से 1,500, और स्पेशल अलाउंस है लेट्स से 5,500। 10,000 हो गया। तो इस बंदे का जो पीएफ डिडक्ट होगा, अगर मैं एक्ट के हिसाब से लूँ तो 12% इज 360 रुपीज, और अगर मैं एक्ट के हिसाब से नहीं लेती हूँ, मैं नॉर्मल लेती हूँ उसका, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से, तो कितना आएगा? 8,500 का 12%, 1,020 पर मंथ उसका डिडक्ट होगा पीएफ। ठीक है, तो 1,800 इज बेसिकली हमारा किस लिए, क्योंकि हमारी सैलरी 15,000 से ज्यादा है, and that is the reason we are considering 1,800 as our for our calculation purpose. But it is not mandatory कि जिसकी सैलरी कम हो तो उसका भी 1,800 जाएगा. It is not like that. Okay. Now, मैम थ्रेशोल्ड लिमिट 10 है या 20 है पीएफ रजिस्ट्रेशन के लिए? पीएफ के लिए 20 है, ईएसआई के लिए 10 है. 10। ठीक है, तो ऐसा होता है कि एम्प्लॉयज को अगर मैं देखूं और लिमिट में देखूं, सैलरी लिमिट, तो पीएफ के लिए 20 का लिमिट है और सैलरी लिमिट है 15,000, और ईएसआई के लिए 10 का लिमिट है, सैलरी लिमिट है 21,000। सो कभी कभी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आप देखोगे, स्पेशली हम लोग बहुत करते हैं अपने बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में, हम ईएसआई जब हम एम्प्लॉय रखते हैं ना, हम उसको 21,100 का ऑफर कर देते हैं, जस्ट टू कीप us aside from the ambit of ESI applicability. ठीक है, ESI ना लगे हमारा, तो इसलिए हम 21,100 कर देते हैं सैलरी। ठीक है, और ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस करती है जहाँ पे वो इस तरीके के रूट को अपनाती है, क्योंकि ये ना एक लेबर लॉ के कंप्लायंस है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, और थोड़ा सा अभी जैसे मेरा एक क्लाइंट है नोएडा में ही, सेक्टर 62 में, उसके पास अभी जस्ट लास्ट वीक ही लेबर लॉ का ऑफिसर आया, एंड एक आपका कुछ रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, 2-4 रजिस्ट्रेशन होते हैं, जैसे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट और ये सब एक्ट, वो सब पूरा, वो लिटरली मतलब इसमें रजिस्ट्रेशन से ज्यादा उनको चाय पानी चाहिए होता है। ठीक है, so they are more concerned about the चाय पानी, and then they will focus on this, registration हो या ना हो किसी को फर्क नहीं पड़ता। so the organizations are aware of this fact कि अभी इस सेक्टर में, I would say इस लेबर लॉ कंप्लायंसेस में कहीं ना कहीं दिस इज क्वाइट अनऑर्गेनाइज्ड, इवन इफ वो ऑर्गेनाइज वो ऑन पेपर दिखाई दे, बट एक्चुअल में अनऑर्गेनाइज्ड है। कोविड के टाइम पे आई नो दिस इज वन कंपनी जहाँ एमएनसी है जिसका मैं पेरोल हैंडल करती हूँ, उस पर्सन का डेथ हो गया, एंड बिकॉज समहाउ एचआर ने मुझे अच्छे से नहीं इन्फॉर्म करा कि डेथ का डेट क्या था। ठीक है, सो मैंने रैंडम डेट डाल के, मतलब रैंडम इन द सेंस जो भी मेरे पास उस वक्त पेपर पे डेट थी, मैंने वो डेट डाल के मैंने उसको एग्जिट कर दिया पीएफ से एम्प्लॉय को। वो दिन और आज का दिन, मतलब उनकी फैमिली में आप देखो ना, तो मतलब लाइक विद इन अ वीक उस पर्सन के पेरेंट्स भी चले गए, वो खुद भी चला गया, सिर्फ उसकी वाइफ बची थी इन द एंड, और उसके फादर। ठीक है, उसका भाई भी चला गया, मम्मी भी चली गई, और वो खुद भी चला गया। ठीक है, सिर्फ उसके फादर बचे और उसकी वाइफ बची। वो दिन और आज का दिन, लाइक 2020 से लेकर आज तक, अभी तक उस बंदे का पीएफ विड्रॉ नहीं कर पाए हम लोग। ठीक है, बिकॉज दिस सेक्टर इज क्वाइट अनऑर्गेनाइज्ड। कहीं ना कहीं चाय पानी चलता है, आज ये डॉक्यूमेंट की कमी है, आज ऑफिसर नहीं आए हैं हमारे। ठीक है, आप कितना ऑफिस चले जाओगे? ठीक है, और डेथ का केस है, तो वो ज्यादा एंटरटेन भी नहीं करते। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारी कंपनीज आप देखोगे ईएसआई से खुद को दूर रखना चाहती है। पीएफ इज लाइक फाइन, पीएफ फिर भी थोड़ा सा है ऑर्गेनाइज वाला, बट हाँ, अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी अप टू 15,000 रुपीज है, तो इन दैट केस द ईएसआई इज ऑल्सो applicable if the organization has more than
like let's say 10 employees. ठीक है? Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, अच्छा, ये तो हो गया मेरा पीएफ. अब पीएफ जो आपका आता है ना, वो आता है ईईई कैटेगरी में. What is your EEE category? Exempt. Yes, exempt. So exempt at the time of contribution. PF आता है आपका EEE category. E stands for exempt. Another E exempt for exempt. Another stands for exempt. ठीक है? So it is exempt category. Exempt at the time of contribution. Exempt at the time of contribution. Exempt at the time of receiving interest. आपको पता होगा पीएफ में जो भी आपका अमाउंट जमा हो रहा है उसमें आपको 8.25% इंटरेस्ट मिल रहा है आजकल. पहले 8.1 था, अभी रिवाइज हो गया हो तो पता नहीं, बट अगर आप पीएफ इंटरेस्ट देखोगे गूगल पे, सो वॉट एवर अमाउंट इज बेसिकली डिपॉजिटेड टू पीएफ अकाउंट, उस पे आपको कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है. सो लेट मी चेक व्हाट इज द करंट इंटरेस्ट रेट. इट इज 8.25%. यस, ठीक है. और एट द टाइम ऑफ विड्रॉल एज वेल, इट इज एग्जेम्प्ट प्रोवाइडेड ये आपने 5 इयर्स के बाद किया हो विड्रॉल. 5 इयर्स के बाद अगर आपने विड्रॉल किया है तो इट इज एग्जेम्प्ट. जस्ट गिव मी अ सेकंड में आई विल गेट यू वन कॉल जस्ट प्लीज. हाँ जी, यस. सो at the time of contribution it is exempt, at the time of income it is exempt, and at the time of withdrawal it is again exempt, provided the withdrawal has been done after a period of 5 years. Okay, so मतलब आपने एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए 5 साल के ऊपर काम किया तो आप बेसिकली एग्जेम्प्ट हो जाएंगे. ठीक है. सो दिस इज द पीएफ स्टेटस. डू यू ऑल हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू पीएफ? बिकॉज एज फार एज आई रिमेम्बर आप लोगों के क्वेश्चंस थे कुछ पीएफ से रिलेटेड. सो प्लीज टेल मी इफ इट इज क्लियर और नॉट. हेलो यस मैम, जस्ट नाउ यू सेड कि जो पीएफ आप विड्रॉ करते हैं वो 5 ईयर के बाद कर सकते हैं, राइट? तो 5 ईयर टोटल वर्क बोल रहे हो आप या सिंगल कंपनी का बोल रहे हैं? मैं सिंगल कंपनी का बोल रही हूँ, और 5 ईयर से पहले भी कर सकते हो. उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है. जैसे कुछ लोग लिख देते हैं कि मुझे मेडिकल इमरजेंसी के लिए चाहिए, कुछ लोग लिख देते हैं कि मेरा घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसके लिए चाहिए. ठीक है, तो भी आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. नहीं बट सर, ऑल दिस इज दैट अमाउंट इज स्टिल अच्छा वो टैक्सेबल रहेगा. तो इफ समवन इज स्विचिंग द कंपनी राइट एवरी 2 इयर्स और 3 ईयर, जनरली करते ही है एम्प्लॉइज, राइट? तो दे कांट विड्रॉ देयर अमाउंट. दे शुड नॉट विड्रॉ देयर अमाउंट. कांट तो नहीं बोलूंगी, दे शुड नॉट. सो ओके, मतलब सिंगल कंपनी 5 इयर्स रहेगी. सिंगल कंपनी 5 इयर्स है, बट लेट मी टेल यू 5 इयर्स के बाद कोई निकालता है ना तो वैसे नॉर्मली बस मेंशन कर देते हैं, एग्जाम पे दिखा देते हैं. हाँ. थोड़ा सा गवर्नमेंट पे छोड़ देते हैं, क्वेश्चन करूंगी तो उधर जवाब दे दूंगी. लेकिन होना ये चाहिए सिंगल कंपनी में अगर आपने 5 ईयर से ऊपर काम किया है तो आप पीएफ विड्रॉ कर सकते हो. एक्चुअली जब आप कंपनी में होते हो ना तब आप पीएफ विड्रॉ नहीं कर पाते हो. यस दैट आई. हाँ, फॉर एग्जाम्पल यू आर वर्किंग फॉर सेट इंडिया बिज. ठीक है, आप ड्यूरिंग अ कंपनी दिस टेन्योर आप सेट इंडिया बिज से पैसे नहीं निकाल सकते हो के पीएफ उससे. एग्जैक्टली, बट प्रीवियस कंपनी का तो विड्रॉ कर सकते हैं ना अगर हमने ट्रांसफर नहीं किया है तो. एग्जैक्टली, आप वो विड्रॉ कर सकते हो प्रीवियस. बट वही मेरा क्वेश्चन है कि 1 साल ही हुआ, मान ली प्रीवियस कंपनी में 1 साल वर्क किया फिर सेट इंडिया बिज ज्वाइन कर लिया. अब प्रीवियस कंपनी, सो यू सेड ना कि एक कंपनी में 5 साल करना पड़ेगा, तभी तो वो पुराना वाला. हाँ, वर्ड लिखा है कॉन्टिन्यूस एम्प्लॉयमेंट, जो Yeah. एक्ट में भी लिखा है ना. तो कॉन्टिन्यूस एम्प्लॉयमेंट, उसमें ये नहीं लिखा कि एम्प्लॉयर है या कौन सा सेम एम्प्लॉयर होना चाहिए या नहीं. उसका इंटरप्रिटेशन हर इंडिविजुअल का डिफरेंट हो सकता है. मेरा इंटरप्रिटेशन ये है कि एक सेम एम्प्लॉयर होना चाहिए और उसके साथ मैं 5 ईयर से ऊपर काम करूं तो अगर आप पैसे विड्रॉ करते हो तो वो टैक्सेबल नहीं होता. ओके, एंड सेकंड मैम जो आप ट्रांसफर बोल रही थी, सो वी नीड टू ट्रांसफर आवरसेल्फ या वो ऑटो ट्रांसफर होता है फंड फ्रॉम ऑटो वन ट्रांसफर एंटिटी नहीं टू? होता.
आप जब यूएन का लॉगिन करोगे अपना, ठीक है, उसमें ऑनलाइन सर्विसेज में क्लेम ट्रांसफर कुछ ऐसे फॉर्म आता है, वो आपको करना पड़ता है खुद से, और इफ ऑटो ट्रांसफर समवन नहीं होती। और इफ समवन फॉरगॉट टू ट्रांसफर तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? इफ समवन फॉरगॉट टू ट्रांसफर तो आप अब कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, मतलब ऐसा एज सच कोई उसका कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है? लोग 2-3 साल बाद भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड एक और चीज होगा, किसी के मल्टीपल यूएन हो सकते हैं। आजकल तो होते नहीं वैसे, क्योंकि आधार से लिंक है, बट जैसे अगर मैं अपने जीजू की ही बात करूं, उनके 3 यूएन है, ठीक है। ही वॉज वर्किंग फॉर एचसीएल कंपनी, देन ही वॉज वर्किंग फॉर सम अदर कंपनी, और देन ही इज वर्किंग फॉर अदर कंपनी। तो अभी वो 3 यूएन का क्या करना है अपने को? तो 3 यूएन भी आपके सरेंडर हो सकते हैं, तो आप अपना मेन यूएन लेके चलो जिसमें आपका आधार कार्ड लिंक है, ठीक है, उसको आप मेन रखो। और फिर देन यू स्टार्ट बेसिकली, आप बेसिकली एक ही यूएन रखो और अपना सारा अमाउंट विड्रॉ कर लो। सजेस्टेड तो ये है कि विड्रॉ कर लो बाकी यूएन से, ठीक है। और अगर विड्रॉ नहीं करे तो वो ट्रांसफर भी हो जाता है दूसरे यूएन में। थोड़ा धक्के खाने पड़ते हैं इस काम में, मतलब ये है, क्योंकि वेबसाइट भी बहुत अच्छी चलती है ना डिपार्टमेंट की, हाँ, वो तो एकदम एक्सपीरियंस स्मूथली चलती है। कुछ ज्यादा तो ही स्मूथ है। हाँ। तो वो उतनी फास्ट चलने की वजह से वो काम थोड़ा जल्दी हो जाता है, ठीक है। वेबसाइट बहुत बेकार है, जोक से पार्ट। अगर मैं पीएफ की वेबसाइट के बारे में बात करूं, तो एक बार को एम्प्लॉयर वाली वेबसाइट तो फिर भी ठीक है, क्योंकि पीएफ जमा कराते हैं हम लोग। अ, वो भी लास्ट डेट पे अपना दिखा देती है अपने नखरे। बट अगर मैं एम्प्लॉय वाली वेबसाइट के बारे में बात करूं, तो वो इतनी ज्यादा बेकार चलती है, दिन में आप उसमें काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लगता है कि शायद लोग एक्सेस कर रहे हो, तो वो बार बार एरर आ रहा होता है, या पेज घूम रहा होता है बार बार, ठीक है, बफरिंग चल रही होती है। आप बेसिकली रात को बैठते हो, रात में ठीक चलती है, फिर भी रात के 9 बजे के आसपास बैठो तब जाके चलती है वो वेबसाइट, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपको वेबसाइट यूज करनी है, दिन में हो सकता है वो नहीं चले, देन यूज दिस वेबसाइट। जो भी आपको काम करना है आप रात में करो। मैं ऑल्दो ये काम नहीं करती, मुझे बहुत वैसा लगता है ये, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते हुए भी, बिकॉज ऑफ द वेबसाइट। तो अगर कोई 5 मिनट का काम हो, बिंदास मेरे आधे घंटा या 1 घंटा लग जाता है, बिकॉज वेबसाइट ही नहीं चल रही, आप क्या ही कर लोगे उसमें, ठीक है। आप बार बार ओटीपी भेज रहे हो, ये कर रहे हो। तो मैं तो नहीं करती हूँ, बट किसी किसी नोन का, बहुत क्लोज बंदों का कभी करा होगा, तो इसलिए थोड़ा बहुत नॉलेज है। तो अगर आप भी कभी करो, तो प्लीज वेबसाइट को यूज करो नाइट के टाइम पे। दिन में चल गई तो आपकी किस्मत, अदरवाइज नाइट में यूज करो, ठीक है, तो ठीक चलती है। सॉरी टू इंटरप्ट मैम, वन मोर डाउट। जो हाँ आप जी। ये आप पेंशन कंट्रीब्यूशन बोल रहे थे हाँ एम्प्लॉय, हाँ, सो दैट यू आर टॉकिंग अबाउट पीपीएफ? ना, मैं आपको ईसीआर दिखाती हूँ, जस्ट लेट मी शो यू द ईसीआर, जस्ट गिव मी। हाँ, यस अंशु, अब वो तो मुझे नहीं पता कि क्या है उनका, बट कभी वेबसाइट अच्छे से नहीं चलती है, कभी भी नहीं चलती। कभी तो चले कि हाँ जी वेबसाइट बहुत अच्छी चल रही है। लेट मी शो यू द ईसीआर जो हम लोग सबमिट करते हैं डिपार्टमेंट पे, मतलब पीएफ की वेबसाइट पे, देन यू विल गेट टू नो कि मैं बोल क्या रही हूँ एक्चुअली, ठीक है। कैन यू सी द स्क्रीन? यस। मैं आपको वर्किंग वाली शीट दिखा, देखो मैं आपको बहुत छोटा सा वेबसाइट दिखा रही हूँ, ठीक है। जैसे ये हमारे यूएन नंबर है, ठीक है, ये हम शीट अपलोड करते हैं वेबसाइट पे, मतलब पीएफ की वेबसाइट पे। ये तो हमारा यूएन नंबर है, मैं इसको हाइड कर देती हूँ, ठीक है। मेंबर नेम आ गया, ठीक है। यूएन नंबर हमारा बेस होता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ठीक है। वो गलत तो आपका मतलब पूरा इंफॉर्मेशन गलत। ये आता है ग्रॉस वेजेस। ग्रॉस वेजेस क्या हो गए हमारे? ग्रॉस वेजेस हमारे वो वेजेस होते हैं जो बेसिकली एक्चुअल में आपकी सैलरी है। तो लेट्स से अगर आपकी सैलरी सबकी 6 लाख रुपए की है, तो 50-50 हजार रुपए यहाँ पे हमारा अपडेट होता रहता चलेगा, ठीक है। फिर हमारे ना 3 टाइप के वेजेस होते हैं, ईपीएफ वेजेस, ईपीएस वेजेस एंड ईडीएलआई वेजेस, ठीक है। ईपीएफ वेजेस, ईपीएस वेजेस एंड ईडीएलआई वेजेस, ठीक है, ये तो मेरे वेजेस हो गए। फिर उसके बाद हमारा आता है ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, जो मेरा 1800 रुपीज का एम्प्लॉय का, ये एम्प्लॉय वाला कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये पूरा का पूरा एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन है। और ये ईपीएस, ये मेरा 8.33% होता है, ठीक है, 15,000 रुपए का। ये मेरा पेंशन में जो पैसा जा रहा है वो है। और ईपीएफ और ईपीएस का जो डिफरेंस है, वो जो रिमेनिंग होता है वो मेरा 550 रुपीज, वो मेरा नॉर्मल एम्प्लॉयर का है।
ठीक है, तो कैन यू सी अगर मेरा एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे 9,000 रुपीज का है, तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन को मैंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। समझ में आ रहा है? 6250 एंड 2750 समझ में आ रहा है या नहीं? अंडरस्टूड। जाता हाँ। पीएफ में ही है, इट इज जस्ट के इसको डिवाइड किया हुआ है आपने। एग्जैक्टली ओके। तो एक पेंशन फंड में जाता है, दिस इज योर पेंशन फंड, ठीक है, और जो रिमेनिंग है वो आपका डिफरेंस जो है वो नॉर्मल उसमें चला जाता है, ठीक है। और लेट मी टेल यू, सब लोग पहले ईपीएफ कंट्रीब्यूशन को कम क्यों रखते थे, मतलब बेसिक सैलरी को कम रखने का रीजन भी मैं आपको बता देती हूँ आज क्या रीजन है। कैन यू सी ये ईपीएफ वेजेस, ये ईपीएफ वेजेस कैसे कैलकुलेट हुए? ये जो 1800 है, मतलब यहाँ पे जितना भी पीएफ जाता है उसको उसका 12% मेरा यहाँ पे ईपीएफ वेजेस में अपडेट हो जाता है, ठीक है। इन ईपीएफ वेजेस के ऊपर मेरा 0.05% का एडमिन चार्जेस लगते हैं, ठीक है। 0.05 या 0.5 है, मुझे परसेंटेज रिकॉल नहीं हो रही बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग विच आई हैंडल, ओके। मैं बस रिटर्न फाइल करती हूँ, बट वो एडमिन चार्जेस वगैरह आजकल तो ऑनलाइन अपने आप ही अपडेट हो जाते हैं, ठीक है। किसी को पता हो तो प्लीज करेक्ट मी, 0.5 है या 0.05 है? और वो एडमिन चार्जेस ऑब्वियसली, जैसे मेरा एक क्लाइंट है, उसका हम पीएफ जमा कराते हैं एवरी मंथ का 10 लाख रुपीज के आसपास का, ठीक है। अब 10 लाख रुपीज का पीएफ ही जा रहा है, तो ये लगा लो वेजेस कितने होंगे, और अगर वेजेस कितने होंगे तो उसका एडमिन चार्जेस अच्छा खासा 30-40 हजार रुपए आ जाता है। तो फालतू का कॉस्टिंग लगता है ना ये अपने को, तो वो भी बचाना हमें होता है, और प्लस ग्रेचुटी की कैलकुलेशन और वो सब अलग चीज है। समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू? Yes, ma'am. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पीपीएफ। पीपीएफ stands for पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है। पीपीएफ जो है उसका मतलब होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। नाउ डू यू एग्री, जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है। डू यू थिंक आई एम इनटू एनी जॉब राइट नाउ? क्या ये मेरी जॉब है यहाँ पे सेट इंडिया बिज के साथ? No, ma'am. देयर इज नो एम्प्लॉय एग्रीमेंट, डू यू ऑल एग्री? Yes, ma'am. तो अगर मुझे पीएफ में जमा कराना हो पैसा, तो मैं तो कभी करा ही नहीं पाऊंगी, मुझे कभी 8.25 का इंटरेस्ट मिल ही नहीं पाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? If there's no employer-employee relationship for an individual who works as a freelancer, or maybe just say I'm a CA into practice, right? So if I'm CA in practice, obviously then I cannot engage myself in all other like मैं officially on paper तो on record में salary पे तो नहीं आ सकती, right? चाहे मैं वैसे ही आ जाऊँ, वो बात अलग है, but on paper on record I can never be into this salary or etc. So in that case, what will happen? मैं कभी पीएफ में अमाउंट जमा ही नहीं हो पाएगा। तो गवर्नमेंट अंडरस्टूड दिस फैक्ट कि यार पीएफ तो मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, दिस इज अ रिकॉग्नाइज्ड पीएफ व्हिच एम्प्लॉयज आर क्लेमिंग, बट व्हाट अबाउट दीज एम्प्लॉयज, what about these individuals who are working for themselves, and maybe they can be the freelancers, they can be doing any other work, they can be into business as well, but in that case there should be pf for them, but it will be known as public provident fund, okay। वो मेरा पीपीएफ कहलाता है। पीएफ और पीपीएफ में यही डिफरेंस है कि पीएफ में आपका कंट्रीब्यूशन इज डन मेड बाय द एम्प्लॉयर, एंड इन पीपीएफ यू कैन yourself made this पीपीएफ कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब ये जो पीपीएफ है, आपको पता है इसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन यू कैन मेक ऑफ अप टू 1,50,000। आप बोलो मुझे तो 2 लाख रुपए जमा कराना है, तो आप कर पाओगे इसमें 2 लाख रुपीज जमा? नो मैम, 1 ईयर पर फाइनेंशियल ईयर आपका 1.5 लाख ही है लिमिट। Yes. So per financial year, you can deposit 1,50,000 only. Per financial year, you can deposit 1,50,000 only. ये पीपीएफ बेसिकली पब्लिक के लिए अवेलेबल है, पब्लिक में आप लोग भी आते हो,
ठीक है, जो अगर एम्प्लॉइज हैं वो भी आते हैं, सो इफ यू वांट टू डिपॉजिट और मोर अमाउंट इनटू पीपीएफ देन मोस्ट वेलकम। ओके, दोनों अकाउंट आपके अलग अलग हो जाएंगे, यूएन अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, आप ओपन कर सकते हो। आप अपने स्पाउस का भी पीपीएफ जमा कराना चाहते हो बिंदास कराओ, बच्चों का कराना चाहते हो बिंदास कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। सेम कॉन्सेप्ट है, पीपीएफ है, बस आप खुद से जमा करा रहे हो पीपीएफ में। इंटरेस्ट रेट भी यू विल फाइंड कि सेम ही होता है, ठीक है। So the interest which you are getting in PF account, the same interest you will get into PPF account as well. Okay, is that clear to every one of you? Yes, ma'am. Okay, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बताइए। हाँ, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आया हुआ था दैट सुप्रीम कोर्ट आई थिंक इंक्रीज, वो अभी न्यूज़ था कि पेंशन फंड जो पेंशन 7,500 कर दे इंक्रीज करके, बिफोर दैट इट वाज 1,000 रुपीज, इफ यू रिमेंबर। अभी रिसेंटली आया हुआ था दैट गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द पेंशन अमाउंट फ्रॉम 1,000 to 7,500। हाँ, सो व्हाट वाज दैट एग्जैक्टली, वो कॉन्सेप्ट क्या है मैम? लाइक वो तो पेंशन जो सबको मिल रही है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में हो सकता है किसी को मिल रही हो पेंशन, वो वाली पेंशन है, इससे रिलेटेड कुछ नहीं है। इंडिपेंडेंट ये वाला नहीं है, वो पीपीएफ वाला। ना, ये वाला नहीं है, पीएफ वाला नहीं। ओके, वो जो एम्प्लॉयज जिनको मिल रही है पेंशन, मतलब जिसकी फैमिली को पेंशन मिल रही है, जिन एम्प्लॉयज को मिल रही है, उनका पेंशन बढ़ाया गया है, सबकी पेंशन अमाउंट बढ़ाई गई है। तो किसी को से 12,000 रुपए मिल रहे थे, उनकी 20,000 कर दी गई। ओके, हाँ, पेंशन बढ़ाई है सबकी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन एक्सेट्रा, बट वैसे ऐसे कुछ नहीं है, मतलब वो इससे रिलेटेड नहीं है। मेरे घर में भी मिलती है ना किसी को, जैसे मेरे तो मेरे को दिखता है कि हाँ ठीक है, इसी महीने से बढ़ी है, इतनी जितना है उस महीने बढ़कर आई थी, ठीक है। ओके, एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू पीएफ, पीपीएफ एक्सेट्रा? मैम, ये पीएफ और पीपीएफ क्या दोनों पे लोन एप्लीकेबल है? अगर कोई लोन अगर लेना चाहे तो लोन अप्लाई कर सकता है वो? पीएफ और पीपीएफ पे यस मैम। ये लोन का मुझे बेसिकली, मुझे एफडी के ऊपर लोन तो पता है कि एफडी के ऊपर लोन आपको मिल जाता है। पीएफ और पीपीएफ का आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, बट आई थिंक पीएफ पे मिल जाता है। रिसेंटली अभी किसी ने किया है। नहीं, but वो I- अगर सपोज दैट वो पीएफ अमाउंट विड्रॉ नहीं करना चाहता है, वो चाहता है हाँ। कि जो मैंने पीएफ अमाउंट मेरा जमा है उस पर कुछ उसको लोन मिल जाए। हाँ, मैं समझ रही हूँ आपका क्वेश्चन, मुझे समझ में आ गया। आई थिंक हो जाता है बिकॉज रिसेंटली आई थिंक लास्ट मंथ किसी ने किया है, बट इसका भी समहाउ, एक तो ऑब्वियसली बैंक टू बैंक पॉलिसीज होती हैं अलग से, ठीक है। तो एक तो उस पर भी डिपेंड करता है कि कौन सा बैंक अलाउ कर रहा है। एफडी के ऊपर मुझे पता है, एफडी के ऊपर तो क्लाइंट ने भी लिया है, बट पीएफ के ऊपर अभी किसी ने लिया नहीं, और जिसने लिया है वो मैं पूछ के बता सकती हूँ, बट इस मोमेंट पे लाइक एट दिस मोमेंट रियल टाइम बेसिस पे इस मोमेंट पे मुझे नॉलेज कम है इस चीज की कि पीएफ के ऊपर लोन मिल पाएगा नहीं, बिकॉज दिस इज नॉट रिलेटेड टू इनकम टैक्स, और दिस इज मोर ऑन द प्रैक्टिकल साइड आई वुड से। अगर इनकम किसी टैक्स क्वेश्चन नहीं है तो अच्छा, अगर किसी ने 2-3 साल पीपीएफ अकाउंट में उन्होंने पैसे डिपॉजिट किए, फिर उसके बाद वो डिपॉजिट नहीं करना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं, तो पॉसिबल है या उसका टेन्योर मतलब फिक्स है? पीपीएफ अकाउंट में आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो टिल 15 इयर्स। ओके, सो सपोज करो आप 25 इयर्स के हुए, आपने 25th ईयर में जमा कराया, 26 में किया, 27 में करा, इसके बाद आपको 35 इयर्स तक आप जमा नहीं कराते हो, ठीक है। आप विड्रॉ करना चाहते हो, आप करा पाओगे? द आंसर इज नो। आप विड्रॉ 40 इयर्स की एज में ही कर पाओगे, ठीक है। बट कुछ एक्सक्लूजन्स हैं, वो एक्सक्लूजन्स आपको चेक करना होगा, वो उसमें शायद आप विड्रॉ कर सकते हैं। राइट। जैसे कोई बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, वो एक्सक्लूजन्स है गिवन, तब भी है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप बिल्कुल ठीक हो, फिट एंड फाइन, और आपको कुछ वो टर्म्स एंड कंडीशन आप फॉलो नहीं कर रहे हो, तब यू कैन विड्रॉ ओनली एट द एज ऑफ 40, ओके, ठीक है। यस मैम। किसी और का और कोई क्वेश्चन? एंड आई एम सॉरी देयर वर 2 और मोर क्वेश्चंस जो कि शायद इनकम टैक्स से रिलेटेड नहीं थे, बहुत ही प्रैक्टिकल थे पीएफ वाले, और मे बी लोन से रिलेटेड थे, सो आई वाज नॉट एबल टू आंसर देम बिकॉज दिस इज नॉट माय डोमेन एरिया, बट
I can ask someone and then tell you the same, but right now I don't have the knowledge of it. Thank you, everyone.